Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, light. Light enables us to see the things around us. It falls on objects, bounces off from their surfaces and reaches our eyes. It is the light that causes the sensation of vision in us. When we open the doors and windows early in the morning, we see a beam of light coming in the room. We can see such beams when light peeps through tree leaves and clouds covering the shining sun. During the night or in the dark, if one lights a torch, a flashlight is seen. On roads after dark, several the light beams are visible coming from the automobiles. Light travels in a straight line. देखिए लाइट आपका जो है उसकी वजह से हमें आप अपने आसपास की सारी चीज़ें नज़र आती हैं. लाइट आपकी किसी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है देन ये उनके सरफेस से बाउंस बैक होके हमारे आइज तक पहुंचती है. ओके और इसके बाद हमें वो चीज़ें सारी नज़र आती है. एंड यू नो लाइट आपकी जो है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके luminous and non-luminous bodies. You all know the importance of light in our lives. You cannot see anything without light, of course. If you enter a dark room or visit a park at night, you cannot see anything without a source of light. We've already learned that sources of light are classified as luminous and non-luminous bodies. Objects like the sun, stars, etc. that emit light are called luminous bodies. Most objects like table, chair, plants, human body, etc. do not emit light and are called non-luminous bodies. ल्यूमिनस बॉडीज वो होती हैं जो लाइट एमिट करती है, जैसे आपके सन है, स्टार्स है. एंड वो बॉडीज या वो ऑब्जेक्ट जो आपकी लाइट एमिट नहीं करती है वो नॉन ल्यूमिनस है, जैसे कि टेबल है, चेयर है, इवन ह्यूमन बॉडी है. राइट. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स. It cannot curve or flow around a body. This mode of traveling is called rectilinear propagation. You can do some activities to know that light travels in a straight line. Activity 1. Number 1. Look at a candle flame or an electric bulb through a pipe. Then bend the pipe and try to look at the same object. You will not be able to see it. Since light travels in straight lines, it will pass through the pipe only when it is straight. 2. Take 3 large pieces of cardboard of the same size, X, Y and Z. Hold them together and punch holes in them by driving a nail through them. Stand the 3 pieces upright. Pass a knitting needle or a long straight thread through the holes to make sure that they are in a straight line. Place a candle behind X in line with the holes. Then look at the flame through the hole in Z. You will be able to see the flame. Next, move one of the cardboards a little. You will no longer be able to see the flame. Since light travels in straight lines, it can pass through the 3 holes only when they are in straight line. देखिए आपको करना क्या है, एक कैंडल लेनी है. ओके और आपने क्या है, जलती हुई कैंडल लेनी है. आप पाइप से, एक जो स्ट्रेट पाइप है उससे देखेंगे आपको कैंडल फ्लेम नजर आएगी. ओके आप बल्ब को भी देख सकते हैं इसी मेथड से. पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, अब आपको वो कैंडल फ्लेम नजर नहीं आएगी क्योंकि जो लाइट है आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके इसी तरह से आपने देखिए 3 कार्डबोर्ड्स लेंगे सेम साइज के. ओके और उनमें होल करना है सेम जगह पे, जैसे और उनको तीनों को एक लाइन में रखना है इस तरह से. एंड आप क्या कर सकते हैं, जो थ्रेड है आप उसमें डाल सकते हैं ताकि ये मेक श्योर करने के लिए स्ट्रेट है या नहीं. और इस तरह से आप कैंडल, यहाँ पे आपकी एक बर्निंग कैंडल होगी. अब आप उसे देखेंगे तीनों जब आपके कार्डबोर्ड्स एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो आपको वो नजर आएगा. अब आप क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा सिर्फ आपको मूव करना है, मतलब इस तरह से कि जो आपको तीनों होल है वो एक लाइन में ना रहे. इसके बाद क्या होगा कि आपको वो जो कैंडल फ्लेम है ना वो नज़र ही नहीं आएगी. राइट. तो आपको कैंडल फ्लेम तब तक ही नज़र आ रही थी जब तक कि वो तीनों होल्स आपके स्ट्रेट लाइन में. ओके सो ये एक्टिविटीज़ क्या शो करती हैं कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. राइट. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. ओके द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हैज मेनी इफेक्ट्स. You may hear people behind a high boundary wall, but you cannot see them. This is because light cannot bend around corners. Shadows are formed because light travels in straight lines. When light falls on an opaque object, it gets blocked since it cannot curve and move around the object. So we get a dark patch behind the object, which is called the shadow of the object. When the rays from an object cross a pinhole, the rays from the top half of the object are below the rays from the bottom half. Their positions remain unchanged because light travels in a straight line. So when they fall on a screen, the image formed is inverted. देखिए हाई बाउंड्री है, बिहाइंड अ हाई बाउंड्री आप लोगों को सुन सकते हैं, हाई बाउंड्री वॉल, बट आप उन्हें देख नहीं सकते.
ओके क्योंकि लाइट जो है वो कॉर्नर्स पे आपके बेंड नहीं होती है। शेडोज आपकी कब बनती है, देखिए आपको पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट का रास्ता हो जाता है ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अराउंड तो वो कर्व नहीं कर सकता ना मूव कर सकता, तो एक डार्क पैच बन जाता है ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, जिसे हम कहते हैं शेडो। ओके और जब आपकी जो रेज आती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और क्रॉस करती है पिन होल को, तो जो रेज होती है ना टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट वो होती हैं आर बिलो द रेज फ्रॉम द बॉटम हाफ, तो उनकी जो पोजीशंस है वो अनचेंज रहती है, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और तो जब वो स्क्रीन पे पड़ती है तो जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड बनती है, नहीं अपसाइड डाउन बनती है, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when light falls on object, some of it bounces off the object while the rest either passes through or is absorbed by the object. The bouncing off of light at a surface is called reflection. You know that we see an object if it reflects or emits light. This means all non-luminous objects that we see reflect light. However, some surfaces reflect light better than others. देखिए जब भी लाइट पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो कुछ उसमें से बाउंस बैक हो जाती है, बाकी वो ऑब्जेक्ट या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या उसके थ्रू पास हो जाती है। ओके तो कुछ सर्फेसेस ऐसे होते हैं जो लाइट को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं कंपैरेटिवली अदर्स। ओके एक्टिविटी 2, प्लेस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस नियर अ स्क्रीन। The objects could be a white sheet of paper, blocks of wood, a steel plate, a plastic plate, a mirror, metal foil and so on. देखिए आपके ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, राइट। Shine a torch on these objects one at a time so that the light reflected from the object falls on the screen. You will see the reflected light as a patch of light on the screen. Things that reflect more light will form brighter patches. अब आपने one by one क्या करना है, आपने टॉर्च को शाइन करना है, ओके एक टाइम पे वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट्स पे, और जिससे आपको नजर आएगी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट की वो आपकी पड़ेगी स्क्रीन पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो आपका क्या बनेगा, पैच ऑफ लाइट बन जाएगा आपका स्क्रीन पे। ओके जो चीज़ें आपकी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी लाइट को वो ब्राइटर पैचेस उनके आपके बनेंगे। ओके यू विल सी दैट मिरर्स इन मेटल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन डू अदर ऑब्जेक्ट्स एंड अ पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ वुड रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन एन अनपॉलिश्ड वन। In general, smooth and polished surfaces reflect light better. तो देखिए मिरर्स ये जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं कंपैरेटिवली अदर ऑब्जेक्ट, और इन जनरल जो आपके स्मूथ या पॉलिश सर्फेसेस होते हैं वो लाइट को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ मिरर? Light reflects off a mirror in a way a ball bounces off a wall. If you throw a ball straight at a wall, it bounces straight back towards you. If you throw the ball at a small angle, it bounces off at a small angle. Changing the angle at which ball hits the wall changes the angle at which the ball bounces. Okay, अब देखिए जो मिरर आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कैसे करता है, जैसे आप बॉल को बाउंस ऑफ करते हैं ना, जैसे वॉल पे आपने उसको डाला थ्रो किया, वापस से बाउंस बैक हो जाएगी आपकी तरह। आप अगर एक छोटे से एंगल पे उसको थ्रो करेंगे तो ये छोटे से एंगल पे आपकी बाउंस ऑफ होगी। ओके तो जैसे आप जैसे एंगल को चेंज कर रहे हैं जिस पे आपकी बॉल हिट कर रही है, तो वॉल क्या कर रही है, एंगल को चेंज कर रहा है जिस पे बॉल आपकी बाउंस हो रही है, राइट। So there is a relation between the angle at which the ball hits the wall and the angle at which it bounces off. In the same way, there is a relation between the angle at which light falls on a mirror and the angle at which it reflects off it. So देखिए जिस तरह से एंगल्स का रिलेशन है ना, जिसमें बॉल आपकी हिट हो रही है देन बाउंस ऑफ हो रही है जिस एंगल पे, इसी तरह से आपका रिलेशन है आपका कि एंगल जिस पे लाइट आपकी पड़ रही है मिरर पे और एंगल जिस पे वो रिफ्लेक्ट ऑफ हो रही है, right? The path taken by a ray of light is often shown by ray diagrams. Figure B, this one, is a ray diagram showing the reflection of light. Note how a mirror is represented in these diagrams. A ray, see, this is the mirror. Okay, this is the mirror, and a ray of light falling on a surface. This one is called the incident ray, and the ray of light reflected of the surface is called the reflected ray. Okay, see, देखिए आपका ये मिरर है, इस पे लाइट आपकी जो पड़ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड फिर एक एंगल पे वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। एक्टिविटी 3, take a mirror in your hand with its a shiny surface facing upwards. Shine a torch on the mirror. The light reflected from the mirror will form a patch on the ceiling. Move the torch to change the angle at which the light falls on the mirror.
As the angle changes, the patch of light on the wall moves to another position. This means that the angle at which the light is reflected also changes. Number 2, make a ray box. Cut a window in a cardboard box. Make a slit on a piece of chart paper and fix it over the window. Now shine a powerful torch behind the slit to get a ray of light. अच्छा देखिए आपको करना क्या है. सबसे पहले एक आपने मिरर लेना है. ओके, उसका शाइनी सरफेस अपवर्ड होना चाहिए. एक टॉर्च को शाइन करेंगे आप मिरर पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी फ्रॉम द मिरर वो एक पैच बनाएगी आपके सीलिंग पे. अक्सर आपने किया भी होगा, ये सन की लाइट के साथ हम करते हैं ना मिरर लेके. फिर टॉर्च को आप मूव करेंगे एंगल को चेंज करने के लिए. ओके, तो जैसे ही आपका एंगल चेंज होगा, जो पैच है ना लाइट का, वो वॉल पे आपका मूव करेगा दूसरी पोजीशन में. दैट मीन्स जो एंगल है जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी आपका चेंज हो रहा है. राइट. रे बॉक्स बनाइए. एक विंडो कट करनी है कार्डबोर्ड बॉक्स में. फिर आपने एक स्लिट बनाना, पीस ऑफ चार्ट पेपर, और इसको फिक्स करना ओवर द विंडो. फिर आपने एक पावरफुल टॉर्च का आप शाइन करेंगे बिहाइंड द स्लिट, जिससे कि आपको रे ऑफ लाइट मिलेगी. ओके, लेट अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द रे बॉक्स फॉल ऑन अ मिरर. Turn the mirror a bit at a time so that the incident ray falls on the mirror at different angles. You will see that this changes the angle the reflected ray makes with the mirror. फिर आप इस तरह से आपने करना है कि जो रे ऑफ लाइट है रे बॉक्स से जो आ रही है वो आपकी मिरर पे पड़े. फिर मिरर को थोड़ा सा आप मूव करेंगे एक टाइम पे, जिससे कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे आपके फॉल होगी डिफरेंट एंगल्स में. ओके, तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पे के एंगल में भी आपके चेंजेस आएंगे. ओके, the mirror shown above has a flat surface. This kind of a mirror is called a plane mirror. If you measure the angles at which a ray falls on a plane mirror and reflects off, you will find that they are equal in all cases. This means that the incident ray and the reflected ray make equal angles with the plane mirror. Okay, ये जो हमने मिरर की बात की थी, आपका प्लेन मिरर है. ओके, तो देखिए जो एंगल आपका होगा, एंगल जो इंसिडेंट रे एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इक्वल एंगल बनाते हैं. यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट. रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. When you look into a plane mirror, your reflection of image seems to be somewhere behind it. However, if you try to find such an image by keeping a screen behind the mirror, no image will be formed on the screen. An image that cannot be formed on a screen is termed as virtual image. देखिए प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, जो रिफ्लेक्शन होती है इमेज की, वो हमें ऐसा लगता है इसके बिहाइंड है. हालांकि अगर आप उस इमेज को स्क्रीन पे लेकर आना चाहें तो स्क्रीन पे आपको वो इमेज नहीं मिलेगी. तो ऐसी इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज, यानी कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते. ओके, rays of light do not actually pass through a virtual image. To us, the rays of light after reflection seem to come from a certain point. We see an image at that point because we see things in the direction of the rays entering our eyes. Okay. अब actually जो rays of light है वो आपके actually pass नहीं होते through a virtual image. जो rays of light होती है reflection के बाद, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक certain point से आ रही है. Okay? तो हमें एक image नज़र आती है उस point पे, क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं in the direction of the rays entering our eyes. Right? If you put a magnifying glass between a screen and a window, you will see that the image of the window on the screen. A pinhole also forms an image on a screen. An image that can be formed on a screen is termed as real image. The image is formed by rays of light actually meeting at a point. Remember that you can see a real image even without a screen if your eyes are in line with the rays coming from the image. The screen only helps you to see the image from many angles. Projectors and cameras form real images. Okay. अच्छा देखिए, आप मैग्नीफाइंग ग्लास को रख दीजिए स्क्रीन और विंडो के बीच में, तो आपको इमेज नज़र आएगी. ओके, विंडो की स्क्रीन पे. पिन होल जो है वो भी इमेज बनाता है स्क्रीन पे. तो इसे कहते हैं रियल इमेज, यानी कि जिस इमेज को आप स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रियल इमेज. ओके, तो इमेज जो बनती है वो बनती है आपकी कैसे, जो रेज ऑफ लाइट है एक्चुअली वो एक पॉइंट पे आपके मीट करते हैं. राइट. इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय मेनी थिंग्स. द प्लेन मिरर इज जनरली यूज्ड फॉर फॉर्मिंग इमेजेस. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, virtual and of the same size as the object. Plane mirrors are not the only things that form images. You might have seen images formed on curved metal surfaces on the screens in cinemas and so on. You might have observed that all images are not like those formed by a plane mirror.
For example, the image formed by a pinhole is inverted and smaller in size than the object. Let us look at the different kinds of images formed by different things. अब जब प्लेन मिरर जो है आपका वो जनरली उसको यूज़ किया जाता है इमेजेस को फॉर्म करने के लिए. जो इमेज आपकी प्लेन मिरर में बनती है वो कैसी होती है, आपकी इरेक्ट होती है, ओके, सेम साइज़ की होती है. ऑफ कोर्स आप देखेंगे अपनी इमेज को देखते हैं तो आपको सेम साइज़ की नज़र आती है, बट ये वर्चुअल होती है, राइट. तो प्लेन मिरर्स ही अकेली ऐसी चीज़ें नहीं है जो इमेजेस बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमेज बनाते हैं. ओके जैसे आपने कर्व्ड मेटल सर्फेसेस पे इमेज देखी होगी, आपकी जो स्क्रीन होती है ना सिनेमास पे, यहाँ पे भी आपकी इमेज बनती है. और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो जितनी भी इमेजेस बनती हैं आर नॉट लाइक दोज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. जैसे कि इमेज आपकी जो पिन होल है उसमें बनती है, वो कैसी होती है, आपकी इन्वर्टेड होती है और शेप में भी साइज में भी छोटी होती है देन द ऑब्जेक्ट. ओके इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस. Take a spoon and observe it carefully. The back of the spoon curves outwards while the front is hollow and curved inwards. A surface that curves outwards is called a convex surface and a surface that curves inwards is called a concave surface. If you see at the concave side of a polished spoon, you will see an inverted image. If you look at the convex side, you will see an erect image. Move the spoon away from you and then towards you. आप स्पून को लीजिए और उसको केवली आप ऑब्जर्व करेंगे. जो बैक होता है ना स्पून का वो आउटवर्ड आपका कर्व होता है, जबकि जो फ्रंट होता है वो हॉलो होता है और इनवर्ड आपका कर्व होता है. तो जो सरफेस आपका आउटवर्ड कर्व होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स सरफेस, एंड वो सरफेस जो आपका इनवर्ड कर्व होता है दैट इज कनकेव सरफेस. तो अगर आप कनकेव साइड में देखेंगे पॉलिश्ड स्पून की तो आपको इन्वर्टेड इमेज आपको आपके फेस की नजर आएगी. लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स साइड पे देखेंगे तो आपको इरेक्ट इमेज नजर आएगी. अब आप क्या करेंगे, अब आप स्पून को मूव करेंगे अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम यू एंड देन टुवर्ड्स यू. ओके यू विल सी दैट द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस. और जैसे जैसे आप स्पून को जैसे दूर लेके जाएंगे, अपने पास लेके जाएंगे, तो इमेज चेंज होती रहेगी. Experiment with other polished curved surfaces like a doorknob, a steel pan and so on. All these curved surfaces form images by reflecting light. Okay? तो same experiment आप दूसरे polished curved surfaces के साथ कर सकते हैं. Right? Activity 4. Cut 2 pieces of metal from a can. Their shiny inner surfaces will be concave. Press one of the pieces around a glass with the shiny surface on the outside. This will give you a shiny convex surface. Allow 2 parallel rays from your ray box to fall on the curved surfaces. After reflection from the concave surface, the rays of light will meet at a point. And after reflection from the convex surface, the rays of light will seem to be coming from a point. आपने देखिए कैन का जो कैन है उसमें से आपने 2 पीसेस को कट करना, जो मेटल का आपका कैन होता है, तो इनका जो शाइनी इनर सरफेस होगा वो होगा कनकेव. वो एक जो आप प्रेस करेंगे वन ऑफ द पीसेस अराउंड अ ग्लास with the shiny surface on the outside, तो इससे आपको shiny convex surface मिलेगा. फिर जो आपने अलाउ करना है 2 पैरेलल रेस को फ्रॉम योर रे बॉक्स की वो कर्व सर्फेसेस पे पड़े. रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव सरफेस है, जो रेज ऑफ लाइट है ना, वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे. ओके एंड कन्वेक्स सरफेस में क्या होगा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो हमें ऐसा लगेगा कि वो किसी पॉइंट से आ रही हैं. ओके The point where parallel rays of light falling on a curved surface actually meet or seem to come from after reflection of the surface is called the focus of the curved surface, and the distance between the focus and the curved surface is called the focal length. Okay, वो point जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो parallel rays है ना light की वो एक curved surface पे actually meet हो रही हैं या फिर आ रही हैं after reflection from the surface, that is known as the focus of the curved surface. Focus is denoted by capital F. Okay, and जो distance होगा focus के बीच और curved surface के बीच, that is known as focal length. And focal length को denote किया जाता है small f से. Right? Rays coming from far away objects such as the sun or the moon are parallel. When these rays fall on a curved surface, they meet at the focus and an image is formed here. The image formed at the focus by a concave surface is real and that formed by convex surface is virtual. Okay. Remember जो image आपकी बनेगी focus पे convex surface से वो real होती है और जो image आपकी बनेगी convex surface से वो होगी virtual. Okay. Concave and convex mirrors.
Certain mirrors used for special purposes have curved surfaces. The rear view mirrors of cars, for example, have curved surfaces. Mirrors having curved surfaces are called spherical mirrors. They can be thought of as small parts of hollow spheres. A mirror whose reflecting surface curves outwards is called a convex mirror, and a mirror whose reflecting surface curves inwards is called a concave mirror. The center of the sphere of which the mirror is a part is called the center of curvature of the mirror. बहुत सारे ऐसे मिरर्स होते हैं जिनको स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके कर्व्ड सर्फेसेस होते हैं. जैसे कार्स में आपने देखा होगा जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें कर्व्ड सर्फेस होता है, और जो मिरर्स जिनमें कर्व्ड सर्फेसेस होता है वो होते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स. ओके, और इनको ऐसा आप सोच सकते हैं कि ये हॉलो स्फेयर के स्मॉल पार्ट्स हैं. मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कर्व होगा आउटवर्ड्स दैट इज कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कर्व होगा इनवर्ड दैट इज कनकेव मिरर. तो जो सेंटर होता है स्फेयर का of which the mirror is a part, that is known as center of curvature of the mirror, and it is denoted by capital C, right? Image is formed by a concave mirror. अब जो concave mirror है वो किस तरह की images बनाते हैं? Okay, let's check out. Unlike the images formed by a plane mirror, the nature of an image formed by a concave mirror depends on how far the object is from the mirror. अच्छा देखिए, अब जो नेचर है इमेजेस का, जो आपका कनकेव मिरर बनाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है फ्रॉम द मिरर. ओके, एक्टिविटी 5. Number 1. Rotate a concave mirror towards the sun. Move a sheet of paper in front of the mirror till an image of the sun is formed at a point of the sheet. This point is the focus of the mirror. Measure the focal length. If you keep the sheet at the focus for long, the paper will start burning because the rays of the sun converge there. Number 2. Next, point the concave mirror towards the window of your room. It will form a real and inverted image on a sheet of paper placed between the mirror and the window. As you move the mirror closer to the window, the image will become larger. देखिए, कनकेव मिरर को आप रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द सन, और फिर आपने एक शीट ऑफ पेपर को मूव करना है मिरर के फ्रंट में जब तक कि सन की एक शार्प इमेज ना बने. ओके, ये जो पॉइंट होगा दैट इज द फोकस ऑफ द मिरर. फिर आपने मेजर करना है फोकल लेंथ को. अगर आप शीट को रखेंगे फोकस पे लंबे टाइम के लिए ना, तो पेपर जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सन की रेज हो रही है वो वहाँ पे कन्वर्स हो रही है. ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो कनकेव मिरर है उसको पॉइंट करना है टुवर्ड्स अ विंडो जो आपकी रूम की है. ये रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा शीट ऑफ पेपर पे. ओके, जो आपका प्लेस्ड होगा मिरर के बीच में एंड द विंडो के बीच में. ओके, और जैसे आप मिरर को मूव करेंगे ना विंडो के क्लोज, तो अब इमेज आपकी हो जाएगी बड़ी. ओके, लार्जर या मैग्नीफाइड, राइट. Number 3. Put a candle just beyond the focus of the mirror. The image of the flame will be formed behind the candle. Figure B, this one. Okay. And if you place an object closer than the focus, the mirror will form a virtual magnified and erect image behind the mirror. Figure C. अच्छा, अब आपने एक कैंडल को रखना है, आपने जस्ट रखना है जो फोकस है मिरर का उसके बियॉन्ड से आगे. तो जो इमेज है फ्लेम की वो बनेगी आपकी बिहाइंड द कैंडल, जैसे कि आपको पिक्चर बी में नजर आ रहा है. ओके, और अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकस के क्लोजर देन द फोकस, तो फिर क्या होगा, मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड होगी और इरेक्ट इमेज होगी बिहाइंड द मिरर. ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है आपकी, रिमेंबर दैट. फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज शोज हाउ अ कॉन्केव mirror forms image of object at different distances from it. Keep in mind the following about the images formed by concave mirrors. Number 1, when an object is beyond the focus of a concave mirror, the image formed is real, inverted and in front of the mirror. Figure A. देखिए, जब भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड द फोकस, ओके, कनकेव मिरर के, तो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, when the object is very far, means at infinity, a point size image is formed at the focus. Figure B. As the object moves closer to the mirror, the size of the image increases. After a point, the image becomes magnified, means larger than the object. The largest image is formed when the object is at the focus. और जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पॉइंट साइज इमेज बनती है आपकी फोकस में, जैसे कि आपको देखिए फिगर बी में.
जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे क्लोजर टू द मिरर, जो साइज है इमेज का वो इंक्रीज होगा और आफ्टर अ पॉइंट जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड हो जाएगी, मीन्स वो आपकी ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो जाएगी, राइट। एंड जो लार्जेस्ट इमेज होगी वो बनेगी जब ऑब्जेक्ट आपका होता है फोकस पे, ओके, मीन्स आपके होगा इस पोजीशन पे, फोकस पे, राइट। When the object is closer than the focus, a virtual image is found behind the mirror. Figure C. This image is erect and magnified. Since concave mirrors can form magnified erect images, they are used as compact and shaving mirrors. और जब आपका ऑब्जेक्ट होगा closer than the focus, एक virtual image बनेगी behind the mirror. ये image होगी आपकी erect and magnified. Okay? आपकी जो है C पर देखिए आपकी जो virtual images में आपकी बन रही है। तो ये आपकी कनकेव मिरर्स जो हैं आपकी मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं, इसीलिए इनको कॉम्पैक्ट या शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है, ओके। इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अभी हमने बात की थी कि किस तरह से आपकी कनकेव मिरर में इमेजेस बनती है। नाउ अब हम देखेंगे आपकी इमेजेस कन्वेक्स मिरर में कैसे बनती है। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, बट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। फिगर ए, सी। The image formed by a convex mirror is always virtual, erect and smaller than the object. Convex mirrors are used as rear view mirrors. Since they form images that are smaller in size, you get a view of wider area than you would if you used plane mirrors. देखिए convex mirror जो है हमेशा वो आपका बनाएगा virtual image, okay? Virtual image है तो behind the mirror बनाएगी, but image आपकी smaller होगी object से। जैसे कि आपने रियर व्यूज में देखा होगा, रियर व्यू आपके नहीं, जो व्यू आपके मिरर्स होते हैं जो आपके कार्स में लगे होते हैं, आपके व्हीकल्स में लगे होते हैं, तो वो इमेजेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट के स्मॉलर साइज में। तो इस तरह से आपको वाइडर एरिया जो है उसका व्यू मिल जाता है, ओके। इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन। The bending of light when it travels from one medium to another is called refraction of light. When you put a spoon in a glass of water, the part of the spoon in water looks bent. This happens because light bends at the surface separating two mediums like water and air. When a refracted ray reaches our eyes, we see an image in the direction of the ray. The position and size of this image are usually different from those of the object. You will see many images formed by refraction around you. Look carefully at the dewdrops or raindrops on the leaves and flowers in a garden. You will observe inverted images of garden in them. You will also observe magnified images like those of the veins of leaves. Refraction creates these images. It can create real as well as virtual images. अच्छा देखिए, reflection of light तो हमने पढ़ा, but what is refraction of light? देखिए जब भी लाइट का बेंडिंग होता है एक जब वो ट्रैवल करती एक मीडियम से दूसरे में, तो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप स्पून को डाल दीजिए ग्लास ऑफ वाटर में, ओके, तो जो पार्ट होगा स्पून का वाटर में, आप ध्यान से देखिए, आप कांच के ग्लास में देखना, ओके, दिस वन, तो आपको वो ना बेंट नजर आएगा, ओके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट बेंट हो गई है एट द सर्फेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स लाइक वाटर एंड एयर, दीज टू आर डिफरेंट मीडियम्स, राइट। तो जब एक रिफ्रैक्टेड रे हमारी आईज तक पहुंचेगी तो हमें इमेज नजर आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द रे, ऑफ कोर्स, एंड जो पोजीशन, जो साइज होगा इमेज का, वो यूजुअली ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, ओके, जो आपकी रिफ्रैक्शन से बनती हैं, जैसे ड्यू ड्रॉप्स होती हैं या रेन ड्रॉप्स होती है ना लीव्स में, या फ्लावर्स होते हैं आपके गार्डन में, आपको इन्वर्टेड इमेजेस नजर आएगी गार्डन की ऑन में, ओके। और आपकी जो है रियल और वर्चुअल दोनों इमेज ये क्रिएट कर सकते हैं, ओके। एक्टिविटी 6, fill a spherical bowl with water. Place it close to a wall opposite a window. An image will form on the wall. This image is real, inverted and smaller than the object. Now take a printed page, place it on one side of the bowl and look at it from the other side. You will see a virtual magnified image of the words printed on the page. The image will be blurry at the sides. So view the image through a small circular hole cut in a piece of thick paper. आपने एक स्फेरिकल बोल लेंगे, पानी से उसको भरेंगे, ओके, और इसको आप क्लोज रख देंगे वॉल जो आपकी विंडो के ऑपोजिट है, तो आपकी इमेज बनेगी
वॉल पे, ओके तो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब आपने एक प्रिंटेड पेज लेना है, ओके और आपने इसको प्लेस कर देना है ऑन वन साइड ऑफ द बोल, और फिर दूसरी साइड से आपने देखना है, तो आपको वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज जो है वर्ड्स की नजर आएगी जो आपके पेज पे प्रिंटेड है, एंड इमेज आपकी साइड्स में कुछ ब्लरी भी होगी, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन लेंसेज। A lens is a polished piece of transparent material with curved surfaces that is used to form images. Two types of lenses are shown in the given figure. In the common convex lens, both surfaces bulge out. These lenses are thick in the middle and thin at the edges. In the common concave lens, both surfaces curve inward. Such lenses are thinner at the middle than at the edges. Okay? Convex lens की बात करें. See, this is the convex lens. ये आपका क्या होता है? Edges से आपका smaller होता है और बीच में आपका ये wider होता है. ओके एंड अगर हम कनकेव की बात करें, कनकेव लेंस की बात करें, तो ये आपका थिनर होता है मिडिल में, और आपका जो एजेस हैं इसके वो आपके थोड़े से क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, राइट। Glasses used by people who cannot see distant objects clearly have concave lenses. A magnifying glass and the glasses used for reading or seeing objects close to the eye have convex lenses. देखिए जिन लोगों को दूर का नज़र नहीं आता है तो वो लगाते हैं कनकेव लेंसेज, जबकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या फिर जो लोग जिनको पास का नज़र नहीं आता है, जो रीडिंग पर्पस के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो एल्डरली पीपल होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, उसके लिए स्पेक्स लगाते हैं पास की चीज़ के लिए, तो उनमें आपका होता है कॉन्वेक्स लेंसेज, ओके। Parallel rays of light actually meet at a point after passing through a convex lens, and they seem to come from a point after passing through a concave lens. The point where parallel rays of light actually meet or seem to come from after passing through a lens is called the focus of the lens. Okay. Activity 7. You will need a convex lens with the lens turned towards the sun. Slowly move it away from the ground. When the lens is at a certain distance from the ground, you will see a sharp image of the sun at a point. This is the point at which the parallel rays of the sun converge after passing through the lens. This point is the focus of the lens, and the distance between the lens and the focus is the focal length of the lens. If you place a sheet of paper at the focus of the lens, it will start burning. आपको एक convex lens की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अपनी लैब में मिल जाएगी, फिजिक्स लैब में। तो आपने लेंस को टर्न करना है टुवर्ड द सन, फिर इसको स्लोली मूव करना है इट अवे फ्रॉम द ग्राउंड। फिर जब आपका एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा लेंस ग्राउंड से, तो आपको एक शार्प इमेज सन की एक पॉइंट पे नजर आएगी, ओके। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो पैरेलल रेस होंगी सन की वो कन्वर्ज हो जाएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, ओके। तो दिस इज द फोकस ऑफ द लेंस, एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेंस एंड द फोकस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जैसे कि हमने आपके पिलर्स में पढ़ा था, ओके। अगर आप शीट ऑफ पेपर को प्लेस करेंगे फोकस ऑफ द लेंस पे, तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। रिपीट दिस एक्टिविटी आफ्टर टर्निंग द लेंस अराउंड। द पैरेलल रेज फ्रॉम द सन विल वंस अगेन कन्वर्ज टू अ पॉइंट। दिस मीन्स दैट द लेंस हैज अ फोकस ऑन बोथ साइड्स। These are denoted by F1 and F2, means focus 1 and focus 2. अगर आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे ना आफ्टर टर्निंग द लेंस अराउंड, तो जो पैरेलल रेज होंगी आपकी सन से जो आ रही है, एक बार फिर से वो कन्वर्ज हो जाएंगे इस पॉइंट पे, यानी कि जो लेंस है उसका फोकस है बोथ साइड में, ओके। इनको हम F1 और F2 से डिनोट करते हैं। एक्टिविटी 8, नंबर 1, प्लेस अ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन. You will get an inverted image of the object on the screen. Number 2, look through the lens at object close to you. You will see virtual, magnified and erect images. Number 3, for a concave lens, use the glasses used for seeing distant object. You will find that it always forms images that are erect and smaller than the object. These images cannot be formed on a screen. आप एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में, तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज जो है ऑब्जेक्ट का वो स्क्रीन पे नजर आएगा। फिर आप लेंस के थ्रू देखेंगे एट ऑब्जेक्ट्स, तो आपको वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस नजर आएंगी। और कॉन्केव लेंस के लिए आप ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, ओके। तो आप देखेंगे कि हमेशा ही जो इमेजेस होंगी ये बनेंगी आपकी इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, और इन इमेजेस को आप स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, ओके। Images formed by a convex lens. Keep in mind the following about the images formed by a convex lens. As the object comes closer to the lens, the size of the image increases. After a point, the image becomes larger than the object. The largest image is formed when the object is at the focus. Number 2, for objects beyond its focus,
a convex lens forms images that are real and inverted. These images are formed on the other side of the incident rays. Figure A. Number 3, for objects closer than the focus, the image is virtual and magnified. Also, the image is on the side of the incident rays. This is the type of image formed when a magnifying glass is placed close to an object. देखिए जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोजर आएगा लेंस की, तो जो साइज है इमेज का वो इंक्रीज होगा और एक पॉइंट पे जो इमेज है वो लार्जर हो जाएगी ऑब्जेक्ट से. तो लार्जेस्ट इमेज आपकी कब बनती है? जब आपका ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे. ओके. अब वो ऑब्जेक्ट जो आपके फोकस के बियॉन्ड है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका क्या बनाएगा? सी, बियॉन्ड आपका फोकस, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बियॉन्ड है, राइट? तो यहाँ पे देखिए इस केस में आपका क्या होगा कि आपकी जो इमेजेस होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी और ये इंसिडेंट रे की अदर साइड बनेगी. सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, अदर साइड आपकी बन रही है. ओके. एंड नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स जो आपके फोकस के क्लोजर होंगे. ओके. तो इस केस में क्या होगा कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, जैसे कि आपको फिगर बी में नजर आ रहा है. ओके. जब भी आपकी जो वर्चुअल इमेज बनती है वो सेम साइड में बनती है आपके इंसिडेंट रेज की. ओके. नेक्स्ट, इमेजेस फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस. अब कनकेव लेंस किस तरह की इमेज बनाता है? देखिए, द इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अब देखिए कनकेव लेंस में क्या होगा, कोई भी पोजीशन हो, आपकी जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी, राइट? व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. डू यू नो, आपकी जो व्हाइट लाइट होती है एक्चुअल में सिंगल लाइट नहीं है, ये 7 कलर्स से मिलके बनी है. ओके. जनरली स्ट्रीट लैम्प्स गिव येलो लाइट. द येलो लाइट लुक्स completely different from sunlight, which is colorless. Light that is colorless is termed as white light. If we mix paints of 6 or 7 colors, the color we will get be dark brown or black, but light mixes differently. White light, for example, is a mixture of light of 7 colors. How do we know that white light has 7 colors? We all have seen a rainbow. A rainbow is produced by the refraction of light. Lights of different colors bend by different angles, so they separate out on a refraction. When sunlight passes through raindrops at certain angles, it bends very sharply. This makes the separated colors visible. Do this activity, see for yourself. देखिए जब हम 6 से 7 कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमें कलर मिलेगा तो डार्क ब्राउन या ब्लैक मिलेगा, बट लाइट जो है वो डिफरेंटली मिक्स करती है. वाइट लाइट आपको 7 कलर्स का मिक्सचर है. ओके. तो हमें कैसे पता है कि इसमें 7 कलर्स होते हैं? आपने रेनबो देखा है? आपकी जो बारिश के बाद रेनबो नजर आता है, राइट? तो रेनबो जो है वो बनता है बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो डिफरेंट कलर्स की जो लाइट होती है वो डिफरेंट एंगल्स पे बैंड हो जाती है और वो सेपरेट आउट हो जाती है ऑन रिफ्रैक्शन. तो सनलाइट जब पास होता है ना रेन ड्रॉप्स पे सर्टेन एंगल्स पे, तो ये बहुत ही शार्पली बेंड हो जाते हैं, जिससे कि सेपरेटेड जो कलर होते हैं वो विजिबल बनते हैं. ओके. तो चलिए एक एक्टिविटी हम करके देखते हैं. एक्टिविटी 9. Keep a glass of water in the path of sunlight streaming into a room. You may have to tilt the glass to see a rainbow. Tilting the glass changes the angle at which sunlight falls in the water. At some angles, light will bend sharply enough for you to see the rainbow. पानी का एक ग्लास रखेंगे, ओके, इन द पाथ ऑफ सनलाइट जो आपके रूम में स्ट्रीम कर रही है. ओके. अब आप थोड़ा सा ग्लास को टिल्ट करेंगे, जैसे रेनबो नजर आएगा. अब जैसे ही आपने ग्लास को टिल्ट किया तो एंगल चेंज हो गया, जिस पर सनलाइट आपकी वाटर पे पड़ रही थी, और कुछ एंगल्स पे, एट सम एंगल्स, जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी शार्पली और उसके बाद आपको रेनबो नजर आएगा, राइट? A rainbow has 7 colors, which you already know, which gradually change from one to another. The set of 7 colors formed on splitting of white light is called the spectrum of white light. These colors have the order violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. You can remember this as VIBGYOR, okay? Yeah. If white light has light of 7 colors, we should be able to get white light by mixing these colored lights. The way light mixes was first explained by the famous English physicist Isaac Newton. He proved that on rotating a rainbow-colored disk, it appears white. Let's make a Newton's disk and see. तो अगर आप वाइट लाइट देखेंगे जिसमें 7 ऑफ लाइट कलर्स हैं, ओके, तो अगर हम इन कलर्स को मिक्स करें तो हमें वाइट लाइट नजर आएगी, राइट? तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था आइजैक न्यूटन ने, अ वेरी फेमस इंग्लिश फिजिसिस्ट. ओके. तो उन्होंने प्रूव किया कि रेनबो कलर्ड डिस्क को अगर आप रोटेट करेंगे तो ये आपको वाइट नजर आएगा. ओके. तो चलिए न्यूटन डिस्क बनाते हैं और देखते हैं.
Activity 10. Draw a circle on a thick paper of white paper. White paper पे circle draw करना है, 7 equal को sections में divide करना है. Okay, divide the circle into equal sections by drawing light lines. The circle can be divided into 1, 2 or 3 groups of 7 equal sections. Fill the 7 sections in each group with the colors of the spectrum in the order Vibgyor. For best results, use pale shades of the colors. Cut out the circle to make a disc. Insert a toothpick through the center of the disc and use gum to hold it in place. Use the toothpick to spin the disc like a top. The spinning disc will look whitish. तो circle को अपने equal sections में divide करना है. Okay? Circle को आप 1, 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 7 इक्वल सेक्शंस के, और फिर उन 7 सेक्शंस को आपने फिल करना है विबग्योर, जो स्पेक्ट्रम की कलर्स है ना आपकी. और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेल शेड्स यूज कर सकते हैं कलर्स का. फिर आपने सर्कल को कट आउट करना है, एक टूथपिक को इंसर्ट करना है उस जिसके सेंटर में. ओके, उसको होल्ड करना है गम से. फिर टूथपिक की हेल्प से आपने उस डिस्क को एक टॉप की तरह स्पिन करना है. तो जब स्पिनिंग होगा ना डिस्क का, तो आपको व्हाइटिश नजर आएगा. Okay, when the disc spins, all the colors pass through a spot rapidly one after the other. This has the effect of putting all the colors in one plate. The colors mix to produce white color. As the colors in the disc you made are not exactly the same as the colors that make up white light, the color produced on spinning will be a pale color close to white. Okay, अगर देखिए जो colors आपने mix किए हैं, okay, वो आपके एग्जैक्टली सेम नहीं है जिससे आपका व्हाइट लाइट बनता है. जो कलर जो प्रोड्यूस होगा ना स्पिनिंग पे, वो आपका पेल कलर बनेगा, मतलब आपका जो व्हाइट के क्लोज होगा. राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.